Today we'll discuss the histology of salivary glands. The salivary glands are divided into two main groups, major salivary glands and minor salivary glands. The major salivary glands include parotid gland, submandibular gland and sublingual glands. Whereas the minor salivary glands, these glands are buried in connective tissue of lips, cheeks, tongue and palate. And these minor salivary glands, they produce only 5% of the total salivary output. Rest of the 95% of the total salivary output is produced by major salivary glands. First, we will discuss the general structure of the major salivary glands. Now, the major salivary glands, they are compound tubuloacinar glands whose ducts open into the oral cavity. Each of the gland is surrounded by a connective tissue capsule which is rich in collagen fibers. From the capsule, connective tissue septa, they arise and they extend into the gland and divide the gland into lobules. Within this connective tissue septa, we have blood vessels, lymphatic vessels, nerves, excretory ducts of the gland. All these structures, they course through the connective tissue of the septa. Now, the secretory acini, they are surrounded by very fine loose connective tissue which ultimately blends with the connective tissue of the septa. So, the salivary glands, they are compound tubuloacinar glands. They are covered by connective tissue capsule from which septa arise. They extend into the gland and divide the gland into lobules. The capsule is made up of dense irregular connective tissue, whereas within the parenchyma we have fine loose connective tissue, and this fine loose connective tissue, it blends with the connective tissue of the septa. And in septa we have blood vessels, lymphatic vessels, nerves and excretory ducts of the gland. This is picture of a diagram of parotid gland. We can see it is surrounded by connective tissue capsule and septa, they extend into the gland to divide it into lobules. Here again we can see the interlobar connective tissue. Basically this is septa which is extending into the gland, and in this we can see connective tissue, we can see the excretory duct, we can also see artery and we can see the vein. Now the parenchyma of salivary glands. Parenchyma जो होता है, basically it is composed of acini which are spherical structures, each consisting of secretory epithelial cells arranged around a central cavity which continues into the duct draining the acinus. Acini consist of serous cells, mucous cells or both. The basal part of secretory cells of acini are embraced by myoepithelial cells which lie between the basal plasma lemma and basal lamina of the secretory cells. पैरेनकाइमा में हमारे पास क्या चीज़ें होती हैं, हमारे पास एसिनाई पड़े हुए होते हैं. ठीक है, एसिनाई क्या है? एसिनाई एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं जिनके अंदर सिक्रीटरी सेल्स पड़े हुए होते हैं. ठीक है, अब वो सिक्रीटरी सेल्स पड़े होते हैं और दरमियान में एक सेंट्रल कैविटी है. ठीक है, जो आगे डक्ट के साथ कंटिन्यू करती है. ठीक है, अब क्या होता है कि ये जो एसिनाई होते हैं जो कि स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं. सीरस सेल्स हो सकते हैं या म्यूकस सेल्स हो सकते हैं. अगर सीरस सेल्स होंगे तो हम उसको सीरस एसिनस बोलेंगे, अगर म्यूकस सेल्स होंगे तो हम उसको म्यूकस एसिनस कहेंगे. या फिर एक थर्ड वेराइटी आती है मिक्स्ड वेराइटी जिसमें सीरस एसिनाई भी होते हैं और सीरस सेल्स भी होते हैं और म्यूकस सेल्स भी होते हैं. बेसिकली वो म्यूकस सेल्स होते हैं विद सीरस डेमिल्यून. ठीक है, वो आगे हम डिटेल में कर लेते हैं. जो सिक्रेटरी सेल्स होते हैं, चाहे वो सीरस हों, चाहे वो म्यूकस हों, चाहे वो मिक्स्ड वैरायटी के हों, ठीक है, उनका जो बेजल पार्ट होता है वहाँ पे मायो एपिथेलियल सेल्स पड़े हुए होते हैं. मायो एपिथेलियल सेल्स बेसिकली जो सेल की बेजल लेमिना होती है और जो बेजल प्लाज्मा लेमा होती है उसके दरमियान पड़े हुए होते हैं मायो एपिथेलियल सेल्स. मायो एपिथेलियल सेल्स कंट्रैक्टाइल सेल्स होते हैं, उनके अंदर एक्टिन और मायोसिन होता है, एक्टिन और मायोसिन होता है. अब काम क्या है मायो एपिथेलियल सेल्स का कि इन्होंने कॉन्ट्रैक्शन करानी है. कॉन्ट्रैक्शन कब करानी है कि जो हमारे एसिनाए हैं इन्होंने तो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करनी है. ठीक है,
जब वो सिक्रीशंस प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होता है कि मायो एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं ताकि वो जो सिक्रीटरी प्रोडक्ट है वो डक्ट में जाए, और डक्ट से आगे फिर वो जहाँ भी ओवल सपोज ओरल कैविटी में जिस तरह ये ओपन हो रहे हैं तो वो आगे फिर ओरल कैविटी की तरफ जाए, ठीक है। तो वो जो सिक्रीशंस होती हैं वो एसिनस से डक्ट की तरफ कैसे जाती हैं, वो इन मायोएपिथेलियल सेल्स की कॉन्ट्रैक्टिलिटी की वजह से जाती हैं, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। आगे हम डिटेल में इसको देखेंगे मायोएपिथेलियल सेल्स को। अच्छा, ये हमारे पास उन्होंने दिखाए में म्यूकस एसिनाए भी हैं, ठीक है, ये वाले म्यूकस एसिनाए हैं, ठीक है। म्यूकस एसिनाए के लार्ज एम्प्टी लुकिंग सेल्स होते हैं विद बेसल फ्लैट न्यूक्लियस। और ये हमारे पास सीरस एसिनाए पड़े हुए हैं। सीरस एसिनाए जो होते हैं इनके सेल्स भी पिरामिडल होते हैं, लेकिन इनके जो न्यूक्लियाई होते हैं वो राउंडेड होते हैं, बेजल होते हैं। और सीरस एसिनाए जो होते हैं इनके बेजल रीजन में बेजोफिलिया होता है और एपिकल रीजन में एसिडोफिलिया होता है, ठीक है। ये दोनों तरह की एसिनाए हैं, म्यूकस एसिनस और सीरस एसिनस। उसके अलावा ये उन्होंने मिक्स्ड वैरायटी का एक दिखाया हुआ है, सीरस डेमिल्यून। ये है म्यूकस एसिनस विद सीरस डेमिल्यून, ठीक है। म्यूकस एसिनस बना हुआ होता है और उसके ऊपर एक कैप होती है सीरस की, सॉरी हाँ जी, सीरस की एक कैप बनी हुई होती है, ठीक है, सीरस सेल्स की। तो इसको हम कहते हैं म्यूकस एसिनस विद सीरस डेमिल्यून, ये मिक्स्ड वैरायटी है, ठीक है। फिर ये उन्होंने बीच में लूज कनेक्टिव टिश्यू दिखाया हुआ है, और ये इंट्रा लोब्यूलर डक्ट दिखाई हुई है जो इसका हमारे पास सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम है। ये इंटरलोब्यूलर एक्सक्रीटरी डक्ट दिखाई भी है इन्होंने। इनके आगे से डिटेल्स हम कर लेते हैं। अच्छा जी, पहले हम डिस्कस करेंगे कि सीरस सेल्स कौन से होते हैं। सीरस सेल्स आर बेसिकली पिरामिडल सेल्स विद ए ब्रॉड बेस फेसिंग द बेसल लैमिना एंड ए नैरो एपिकल सरफेस फेसिंग द ल्यूमेन ऑफ द एसिनस. Each cell contains a spherical basally located nucleus. The basal region of the cell contains numerous mitochondria, abundant rough endoplasmic reticulum, and many free ribosomes. That's why in routine hematoxylin and eosin stain sections, the basal region of serous cell stains basophilic. Apical region contains many secretory granules which are called zymogen granules, and they stain this apical region stains acidophilic. The serous cells produce a thin watery secretion which is rich in enzymes. यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारे पास सीरस एसिनस है, ठीक है। बेजल रीजन में अब देखिए ये स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर है, पिरामिडल इसके सेल्स हैं। बेजल रीजन में ये पर्पल लाइन नहीं है, ये पर्पल शेडिंग है। और ये पर्पल शेडिंग किसकी वजह से है, जो इसके अंदर ये हमारे पास जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, और जो राइबोसोम्स होते हैं उसकी वजह से बेजल बेजोफिलिया हो जाता है, ठीक है। और एपिकल रीजन में हम देख सकते हैं कि इसके अंदर ये पिंक कलर के ग्रेन्यूल्स पड़े हुए हैं और पिंक शेडिंग हुई हुई है। ये एसिडोफिलिया किसकी वजह से है, जाइमोजिन ग्रेन्यूल्स की वजह से है, ठीक है। इनका राउंडेड न्यूक्लियस होता है, ठीक है। कुछ जगहों पे लिखा हुआ है कि इनका सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, कुछ जगह पे लिखा हुआ है बेजल न्यूक्लियस होता है। अच्छा, ये उन्होंने म्यूकस एसिनस दिखाया है और ये सीरस एसिनस, ठीक है। म्यूकस एसिनस जो एसिनाए जो होते हैं इन ये पिरामिडल सेल्स होते हैं, लेकिन इनका फ्लैट बेजल न्यूक्लियस होता है, ये ओवल बेजल न्यूक्लियस होता है। जो सीरस एसिनाए होते हैं वो भी पिरामिडल सेल्स होते हैं, लेकिन उनका न्यूक्लियस राउंडेड होता है। अच्छा जी, म्यूकस सेल्स आर पिरामिडल इन शेप विद ओवल और फ्लैटेंड न्यूक्लियस प्रेस्ड अगेंस्ट द बेजल प्लाज्मा लेमा. The apical region of the mucous cells is occupied by numerous mucinogen granules which are washed away during histological procedures. अच्छा, इसका जो ये म्यूकस सेल्स होते हैं ना, ये लार्ज पिरामिडल सेल्स होते हैं। बेजल रीजन में इनका एक ओवल या फ्लैटेंड न्यूक्लियस पड़ा हुआ होता है। जब हम इनको देखते हैं तो ये एम्प्टी लुकिंग सेल्स आते हैं। ये एक्चुअली एम्प्टी लुकिंग सेल्स नहीं होते, इनके अंदर एपिकल रीजन में म्यूसिनोजेन ग्रेन्यूल्स होते हैं। लेकिन जब हम हिस्टोलॉजिकल प्रेपरेशंस करते हैं, जब हम स्लाइड प्रिपेयर करते हैं, तो उस प्रोसीजर के दौरान वो जो ग्रेन्यूल्स होते हैं म्यूसिनोजेन ग्रेन्यूल्स वो वॉश अवे हो जाते हैं, लिविंग बिहाइंड द सेल्स, एम्प्टी या उसे एम्प्टी लुकिंग अपीयरेंस दे देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप शोज दैट दी सेल्स हैव माइटोकॉन्ड्रिया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस. These cells secrete mucin, which is strongly hydrophilic glycoprotein material, and upon contact with water, it is converted into mucus.
अच्छा, यहाँ पे हम देख सकते हैं म्यूकस एसिनस को कि इसके लार्ज पिरामिडल सेल्स हैं और इनका जो है वो न्यूक्लियस है वो ओवल या बेसल फ्लैटेड न्यूक्लियस है। अगेन इस तरह हम इसे अपनी कॉपी पे ड्रॉ करेंगे कि लार्ज पिरामिडल सेल्स हैं, ठीक है, और इसका जो है ल्यूमेन वो कंपैरेटिवली स्मॉल होता है और इसके जो है एम्प्टी लुकिंग सेल्स होते हैं, बेसल फ्लैट न्यूक्लियस होता है और यहाँ पे मायोएपिथेलियल सेल भी शो किया हुआ है जो कि बेसल प्लाज्मा लेमा और ये जो बेसल सेल्स हैं, ये जो सिक्रीटरी सेल्स हैं, इनकी जो है ना वो बेसल लेमिना के दरमियान में होता है। अच्छा, myoepithelial cells are found between the basal lamina and basal plasma lamina of the serous or mucous cells forming secretory end pieces, that is acinotubules. These cells also underlie the cells of intercalated ducts of the salivary glands. Each myoepithelial cell has a body and many long processes that envelop secretory cells. एक बॉडी होती है इसकी, ठीक है, और बहुत सारी लॉन्ग प्रोसेसेस होती हैं। बॉडी के अंदर न्यूक्लियस होता है और स्मॉल नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज, ठीक है, एंड इट ऑल्सो कंटेन्स ए स्मॉल नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज। वेरएज जो इसकी सेल प्रोसेसेस होती हैं उसके अंदर एक्टिन और मायोसिन होता है, ठीक है। These cells are contractile cells and their contractions push the secretory product towards the excretory duct, ठीक है, पहले भी ये बात हो चुकी है। अच्छा, दोबारा से देख लेते हैं कि जो मायोएपिथेलियल सेल्स होते हैं वो कहाँ पे पड़े हुए होते हैं, वो बेसल लेमिना और बेसल प्लाज्मा लेमिना ऑफ दी सीरस और म्यूकस सेल्स, ठीक है, वहाँ पे ये पड़े हुए होते हैं उनके दरमियान में और ये सिक्रेटरी एंड पीसीस बनाते हैं। मायोएपिथेलियल सेल्स का स्ट्रक्चर क्या है कि एक बॉडी है और लॉन्ग प्रोसेसेस हैं। बॉडी में हमारे पास न्यूक्लियस होता है और ये स्मॉल नंबर ऑफ ऑर्गेनेलीज होती हैं और जो इसकी प्रोसेसेस हैं उसके अंदर एक्टिन और मायोसिन होता है, जिसकी वजह से इन सेल्स को हम कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स भी कहते हैं। और इन क्या करते हैं ये कि इनकी कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से जो सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स होती हैं वो पुश होती हैं टुवर्ड्स दी एक्सक्रीटरी डक्ट। अब बात करते हैं डक्ट सिस्टम ऑफ स्लाइवरी ग्लैंड्स की। तीन तरह की डक्ट्स होती हैं स्लाइवरी ग्लैंड्स में, इंटरकैलेटेड डक्ट्स, स्ट्राइएटेड डक्ट्स एंड एक्सक्रीटरी डक्ट्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं ये हमारे एसिनार सेल्स हैं, ठीक है। एसिनस के अंदर मायोएपिथेलियल सेल्स भी शो हुए में, ठीक है। वहाँ पे जब हमने मायोएपिथेलियल सेल्स किए थे तो वहाँ पहले हमने ये बात पढ़ी थी कि ये जो एसिनाई को भी लाइन करते हैं प्लस ये इंटरकैलेटेड डक्ट्स जो हैं उनके भी वहाँ पे भी ये पड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे मायोएपिथेलियल सेल्स हैं वो एसिनार सेल्स के भी इधर एसिनस के गिर्द भी पड़े हुए हैं, ठीक है, और जो इंटरकलेटेड डक्ट्स में भी हैं, ठीक है। ये हमारी इंटरकलेटेड डक्ट है और आगे हमारी स्ट्राइएटेड डक्ट है, ठीक है। इंटरकलेटेड डक्ट्स जो होती हैं इनका सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है। यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है इंटरकलेटेड डक्ट का सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। They have small diameter and are lined by simple cuboidal epithelium. These cells have the capability to divide and differentiate into secretory cells and ductal cells. These glands are considerably long in parotid and submandibular gland but very short in sublingual glands. दूसरी हमारे पास आई स्ट्राइएटेड डक्ट्स। जो स्ट्राइएटेड डक्ट्स होती हैं, जो इंटरकलेटेड डक्ट्स होती हैं वो स्ट्राइएटेड डक्ट्स में ओपन करती हैं और जो स्ट्राइएटेड डक्ट्स जो होती हैं वो क्या करती हैं वो आगे से एक्सक्रीटरी डक्ट्स में ओपन होती हैं। अच्छा, स्ट्राइएटेड डक्ट्स आर लाइंड बाय सिंगल लेयर ऑफ लो कलमनर सेल्स. Cytoplasm of these cells stains intensely with eosine and shows basal striations. The nucleus of duct cells occupy a central position within the cell rather than basal. The intercalated and striated ducts lie within the lobules and therefore these two ducts are regarded to be as intralobular ducts. यहाँ पे हम देखते हैं ये हमारी स्ट्राइएटेड डक्ट्स हैं। स्ट्राइएटेड डक्ट्स जो हैं और ये इंटरकलेटेड डक्ट्स, ये दोनों हमारी इंट्रालोब्यूलर डक्ट्स होती हैं। यहाँ पे अगेन उन्होंने स्ट्राइएटेड डक्ट दिखाई हुई है, ठीक है। स्ट्राइएटेड डक्ट का लो कलमनर एपिथेलियम है और इसका एपिथेलियम बेसल नहीं होता, सेंट्रल होता है, ठीक है। फिर आगे हमारी एक्सक्रीटरी डक्ट्स। अब स्ट्राइएटेड डक्ट्स फ्रॉम ईच लोब्यूल दे कन्वर्ज एंड ड्रेन इनटू इंटरलोब्यूलर डक्ट्स that lie in the connective tissue septa which separates the adjacent lobules. तो जो पहले हमने बात की थी कि कनेक्टिव टिश्यू कवर कर रहा होता है, ठीक है, पूरे ग्लैंड को कनेक्टिव टिश्यू से सेप्टा राइज करते हैं और लोब्यूल्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है।
वो जो लोब्यूल्स होते हैं वो मतलब लोब्यूल्स होते हैं, ठीक है। हर लोब्यूल के अंदर दो तरह की डक्ट्स होती हैं, स्ट्राइएटेड डक्ट्स और इंटरकलेटेड डक्ट्स। उनको हम इंट्रालोब्यूलर डक्ट्स कहते हैं। अब वो जो इंटरकलेटेड होती हैं वो स्ट्राइएटेड में ओपन होंगी, और स्ट्राइएटेड जो होती हैं वो कन्वर्ज करती हैं और वो आगे से ओपन होती हैं इंटरलोब्यूलर डक्ट्स में। मतलब जो दो लोब्यूल्स के दरमियान में डक्ट पड़ी हुई है वो इंटरलोब्यूलर डक्ट होगी, ठीक है। इंटरलोब्यूलर डक्ट सेप्टा के अंदर पड़ी हुई होती है, ठीक है। फिर आगे इंटरलोब्यूलर डक्ट्स जो हैं वो आपस में ज्वाइन करती हैं और इंटरलोबार डक्ट्स बनाती हैं, और ये इंटरलोबार डक्ट्स जो होती हैं आगे मेन एक्सक्रीटरी डक्ट के अंदर ओपन होती हैं, ठीक है। और वो मेन एक्सक्रीटरी डक्ट जो होती है आगे जाके ओरल कैविटी में ओपन होती है और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को वहाँ पे डिलीवर कर देती है, ठीक है। The interlobar, and main excretory ducts, they are called, these are all purely excretory ducts. That is, they serve as simple conduits and do not modify the secretory product following them. यहाँ पे उन्होंने अब excretory duct भी दिखाई हुई है, ठीक है। बाकी इंटरकलेटेड डक्ट भी शो की हुई है उन्होंने यहाँ पे, और सीरस एसिनाए हैं, बाकी आर्टरी है, एक गैंग्लियन सेल भी पड़ा हुआ है। अब interlobular ducts are lined by simple cuboidal epithelium. Interlobar ducts are lined by pseudostratified columnar epithelium, whereas the main duct of salivary glands is lined by stratified columnar epithelium that changes into stratified squamous non-keratinized variety near its opening into the oral cavity. इंटरलोब्यूलर का सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम है, इंटरलोबार का सूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम है, और जो मेन एक्सक्रीटरी डक्ट का है उसका स्ट्रेटिफाइड कलमनर एपिथीलियम है। अब आगे जी पेरोटिड ग्लैंड। पेरोटिड ग्लैंड इज लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड बट इट प्रोड्यूसेस ओनली 30% ऑफ द सलाइवा। 60% ऑफ द सलाइवा इज प्रोड्यूस्ड बाय सबमैंडिबुलर ग्लैंड। अच्छा, लार्जेस्ट सलाइवरी ग्लैंड है, 30% सलाइवा प्रोड्यूस करता है। इट इज़ कंपाउंड ट्यूबुलोएसिनार ग्लैंड ऑफ प्योरली सीरस वेराइटी। तीनों ग्लैंड्स में फ़र्क क्या है, उनके एसिनाई का फ़र्क है कि वो कौन सी वेराइटी से बिलोंग करते हैं। तो जो पेरोटिड ग्लैंड है इट इज़ प्योरली सीरस ग्लैंड, ठीक है। It is covered by a well-developed connective tissue capsule from which numerous septa pass into the gland substance to divide into lobes and lobules. These septa carry ducts, nerves, blood vessels and lymphatic vessels. Parenchyma of the parotid gland consists only of serous acini. ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है उसकी पेरोटिड ग्लैंड की, ठीक है। इसके अंदर हमें ये कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा भी नज़र आ रहे हैं, इंटरलोब्यूलर कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। स्ट्राइएटेड डक्ट्स भी नज़र आ रही हैं। फिर हमें दूसरी ये जो है इंटरकलेटेड डक्ट्स भी नज़र आ रही हैं, और बाकी हमें सीरस एसिनाई भी नज़र आ रहे हैं। प्योरली सीरस है, इसमें सिर्फ सीरस एसिनाई होंगे, ठीक है। इंटरकलेटेड डक्ट्स आर लॉन्ग, स्ट्राइएटेड डक्ट्स आर लार्ज एंड कॉन्स्पिक्यूअस. Adipose tissue is also present in the gland substance and its amount increases after the age of 40 years. Secretory product parotid gland की होती है amylase. दूसरी हमारे पास दूसरी टाइप का ग्लैंड आया जी सबमैंडिबुलर ग्लैंड। सबमैंडिबुलर ग्लैंड इज कंपाउंड ट्यूबुलोएसिनार ग्लैंड ऑफ मिक्स्ड वेराइटी, ठीक है। सीरस एसिनाई भी होते हैं और म्यूकस एसिनाई भी होते हैं, लेकिन प्रीडोमिनेंटली सीरस है। 90% इसके जो एसिनाई हैं वो सीरस एसिनाई हैं, और 10% सिर्फ जो हैं वो म्यूकस एंटीसीज हैं, ठीक है। अब इसमें एक भी बीच में सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ सीरस और एसिनाई हैं, बल्कि जो म्यूकस ये जो सेल्स हैं विद सीरस डेमिल्यून्स वो भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। सम ऑफ द म्यूकस एंड पीसेस बियर कैप्स ऑफ serous cells called serous demilunes that exhibit a crescentic shaped appearance in the histological sections. Intercalated ducts are narrow and short. Striated ducts are longer than those of parotid and sublingual glands. Connective tissue capsule of submandibular gland is also well developed and sends in septa that divide the gland substance into lobes and lobules. It produces 60% of the total saliva output and secretory product is mucin and amylase. तो हम कनेक्टिव टिश्यू पहले पूरा ड्रॉ करेंगे, वहाँ से हम सेप्टा जो हैं वो ड्रॉ करेंगे जो कि इनटू दी ग्लैंड सब्सटेंस, ठीक है। अंदर फिर हम सर्कल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जो कि हमारे एसिनाई होंगे, ठीक है। 90% ड्रॉ करने हैं सीरस और 10% ड्रॉ करने हैं म्यूकस, ठीक है। उसके बाद
फिर डक्ट्स ड्रॉ करनी है, स्ट्राइएटेड और इंटरकैलेटेड डक्ट्स ड्रॉ करनी है, और फिर जो सेप्टा है उसके अंदर इंटरलोब्यूलर डक्ट ड्रॉ करनी है। ठीक है, अब ये हमारे पास माइक्रोस्कोपिक पिक्चर है सबमैंडिबुलर ग्लैंड की। अब मिक्स्ड वैरायटी के हैं तो प्रीडोमिनेंटली सीरस ग्लैंड है, लेकिन बीच में देखिए कुछ कुछ म्यूकस भी पड़े हुए हैं। ठीक है, एम्प्टी लुकिंग सेल्स विद फ्लैट बेसल न्यूक्लियस, ये हमारे पास कुछ जो हैं वो म्यूकस हैं, बाकी जो हैं वो सीरस हैं। फिर हमारे पास ये आई अब थर्ड वेराइटी सबलिंगुअल ग्लैंड। सबलिंगुअल ग्लैंड इज compound tubuloacinar gland of mixed variety, but its secretion is predominantly mucus in nature. The parenchyma consists of mucous tubular secretory units, many of which bear serous demilunes. Pure serous acini are rarely seen. Both intercalated and striated ducts are short. Connective tissue capsule is thin and poorly developed. It produces 5% of the total salivary output. ये हमारे पास मिक्स्ड वेराइटी का एक है म्यूकस एसिनस विद सीरस डेमिल्यून। यहाँ पे हम देखें तो यहाँ ऊपर हमें ये म्यूकस एसिनस यहाँ पे नज़र आ रहा है। म्यूकस एसिनस में देखें तो लार्ज पिरामिडल सेल्स हैं, फ्लैट बेसल न्यूक्लियस है, मायोएपिथेलियल सेल्स हैं, और इसके ऊपर हमारे पास सीरस कैप है जिसमें राउंडेड न्यूक्लियस है, इसका बेसल बेजोफिलिया है, एपिकल रीजन में जाइमोजिन ग्रेन्यूल्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास उसकी डायग्राम है कि इसमें ज़्यादातर हमारे पास म्यूकस एसिनाए हैं। ठीक है, इंट्रालोबुलर डक्ट भी उन्होंने दिखाई हुई है। उसके अलावा उन्होंने कनेक्टिव टिश्यू सेप्टा दिखाया जिसके अंदर एडिपोसाइट्स भी हैं और इंटरलोब्यूलर डक्ट्स भी हैं। ठीक है, फिर नीचे अगर हम देखें तो उन्होंने इंटरकैलेटेड डक्ट भी शो की हुई है इसके पैरेन्काइमा के अंदर। अगेन यहाँ पे हम देखें तो म्यूकस एसिनस हैं, साथ में डक्ट्स भी शो की हुई हैं, इंटरकैलेटेड डक्ट भी है, स्ट्राइटेड डक्ट भी है। ठीक है, तो ये जी हमारे लेक्चर का एंड हुआ।